رب زدني علما. We'll be starting from conceptual framework. We'll be having introduction or of IS or IFRS, and then one or two IS will be covering. Okay, one of the most important document underpinning the preparation of financial statement is conceptual framework for financial reporting. Thereafter, we'll be referring it with the framework. Definitely, IS and IFRS are important for specific topics, but the thing which cover all the things, that is basically conceptual framework. Okay, let me put a religious kind of question. If I ask both of you, okay, give me the name of one book which guide you how we should be spending life. Can you please name that book? Can you hear me? Hello. I can. The Quran is the best. I mean, so Exactly. So Quran is the best book. That is the holy book which guides us how we should be living life. Right? yes, The same way for accounting, the holy book is conceptual framework. okay, Right? Conceptual, like yes, in why I gave this example for Quran give you the you should like pray for 5 times or whatever the times are there. What should there is hikmat in Quran, there is shariat in Quran. The same thing, conceptual framework gives you how the financial statement should be prepared. So basically, the conceptual framework provides you the ideas, concepts, and principles, like how the financial statement should be prepared. Like, if you ask me what is the basic difference between conceptual framework and IS and IFRS, so IS and IFRS give you guidance on one specific topic. For example, IS2 give you guidance on inventories, IS8 gives you guidance on, say, IS7 gives you guidance on preparing the cash flow statements. IS10 gives you idea on events after balance sheet date. IS11 gives you idea about construction contract. IS12 gives you taxes. IS16 non-tangible assets. Blah blah. IS36 impairments. IS30. So they are all for one specific topic. But conceptual framework gives you all the concept ideas and principles. So we'll be refreshing all those concepts, principles, and ideas today. From that one, what is the purpose of framework? The purpose of framework is to assist IASB. IASB stands for International Accounting Standard Board, which issues yes, all these IS and IFRS in development of financial reporting standards to assist prepare the financial statements, to develop accounting policies when the reporting standards do not provide sufficient guidance. That's it. We'll be going ahead. What is the conceptual framework then? Like, if someone asks you what is conceptual framework, or you are working somewhere, you have to apply it. Now, conceptual framework is coherent system of interrelated objectives and fundamental principles. So basically, it gives you the guidelines, it gives you the principles, it also gives you rules, but rules are more stated in the IFRS or IS rather than in conceptual framework. A framework which prescribes the nature, function, and limits the financial accounting and financial statements. There are two main approaches to accounting. One is principle based, one is rule based. What is principle based? Principle based is, for example, the purpose is, एग्जाम्पल दे रहा हूं, द पर्पज इज कि आपने इंडिया या पाकिस्तान आना है. अच्छा, अब व्हाट विल बी व्हाट प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच विल बी टेलिंग यू, भाई आपने इंडिया जाना है ना, द पर्पज इज दैट कि आपने कल इंडिया पहुंचना है. आप कोई भी फ्लाइट लेके जाओ, दैट डजंट मैटर. आप शारजा से जाए, दुबई से जाए, अबू धाबी से जाए, दैट डजंट मैटर. दैट शुड बी एथिकल, राइट? आपको डंकी नहीं yes, लगानी. आपको डंकी नहीं yes, लगानी, आपको एथिकली पहुंचना, दैट इज बेसिक. बट यू कैन डू, yes, you can adopt any like way. Now, what is rule based approach? Rule based approach is you have to go to India tomorrow and you have to go by Air India, or in Pakistan you have to come by PIA. Now that is rule based approach. So what is yes, the basic difference between rule based and principle based? Principle based give you a bit of flexibility, but rule based approach doesn't give you the flexibility.
Now, what is advantage of principle based approach? Advantage of principle based approach is it covers a huge area as well. Because let's suppose if you are given that chance, like you are given the task, you have to go to meeting in India tomorrow, and you can go from anywhere. You have to reach there only. So what you will be doing, if you will be going from Sharjah or Dubai, you have the flexibility. If you have some work in Dubai, Sharjah, you can come Sharjah and do work over there, and then you can go from Sharjah to India. But if you are only told you have to go through Abu Dhabi station airport and you have to reach India, then you don't have that flexibility. So this is basically the main difference between rule based and principle based. Normally in USA, rule based approach is followed. That's why in USA, GAAP is followed. Generally accepted accounting principles. They are more towards the rule based rather than the principle based, right? Any questions Yes. so far? No, it's okay. It's Okay. okay. The objective, then what is the objective of financial reporting? The main objective is to provide financial information about the reporting entity to users of financial statement that is useful in decision making, about providing economic resources to entity as well as other financial decision. So there is one single objective for which there is also a conceptual framework. There is also all the IFRS or IS. Objective is provide correct information to its user because they have to make the decisions. Now, the question is, who are the users? See, when we study bachelors or when we study masters, they tell you there are like users are shareholders, users are banks, users are Yeah. students, users are Absolutely. blah blah blah. They tell you 8 or 9 type of like users. But let me Yeah. tell you, there is main group for which the financial statements are produced, and that main group is shareholders. Yes. Okay, either they are existing or they are prospective or they are potential, but major group is shareholders. Rest of the financial statements are prepared only by purpose. If you are like if you are working already like those years in that industry, you will be knowing that there is not a single financial statement set. There are multiple financial statement sets which are produced for different purposes. I don't know whether you know or not, but that is there. That is the Yeah. Yes. Yes. got it. Now you got that. Yeah. There are Actually, many. yeah. Yes. Actually, my work is on. I'm just moving around. My work is on actually earnings management on those public limited companies which presented their financial statements using IFRS and that MS thesis, and we found that more than 50% of the published financial statement, like my data set was about 28,000 firms of China, right? 28,000, that was a huge data set. And we found that more than 50% of the firms, they were involved in earnings management practices. Even those financial statements were audited. Okay, so that's there always. Okay, when producing or providing financial information, there is one basic principle which should be followed by every and each of the accountant. That is prudence. Now, what is prudence? We generally like हम उर्दू या हिंदी में अगर बात करें prudence की, तो prudence is basically अक्लमंदी, Yes. right? Prudence is basically Yes. अक्लमंदी. दूसरे कौन है? Come on. Yes. वो नहीं बोल रहे. वकास साहब, आप भी हमारे साथ है ना? जी बिल्कुल साथ अच्छा, हूँ आपके साथ जी। ठीक है, गुड गुड गुड। मैं क्या, आप खामोश है ना काफी, कहीं नाराज ना हो गए हो? ओके जी। Oh, प्रूडेंस, yeah. प्रूडेंस नॉर्मली कहते हैं अक्लमंदी को। अगेन सी, Yeah. बोथ ऑफ यू डियर, अगर आप ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इसको कॉमन सेंस की बेस पे यू विल लर्न इट ना, तो यू विल सी कि यार ये तो वाकई कॉमन सेंस, दिस इज ओनली अ कॉमन सेंस व्हिच इज अराउंड अस। उसी को बस उन्होंने वर्ड्स को आगे पीछे करके कुछ प्रिंसिपल बना दिए हैं, और बस हमें कोई हवा बना के दिखाया जाता है कि आईएफआरएस को बहुत बड़ी चीज है। दैट्स नथिंग, दैट्स ओनली कॉमन सेंस। Here is also the basic principle is prudence. See, yes, both of you are working in industry. When we are producing financial statements, तो बहुत सारी जगहों पे we use estimates. ठीक है? Yes. एस्टिमेट्स Sorry. होती हैं, जजमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, Yes. एसेट्स की बात करें तो एसेट की डेप्रिसिएबल लाइफ इज अ जजमेंट, इज एन एस्टिमेट, Yes. राइट?
अच्छा, Yes. प्रोवियंस की बात करें तो दैट्स एस्टिमेट, दैट्स जजमेंट। वो कहता है जब भी Yes. आपने जजमेंट या एस्टिमेट्स अप्लाई करने हैं तो आपने अक्लमंदी यूज करनी है। वो अक्लमंदी कैसे यूज करनी है? आपने कॉशन यूज करनी है। अच्छा, कॉशन कैसे यूज होगी? सिंपल सी बात है, कॉशन कैसे यूज होगी? वो कहता है कॉशन ऐसे यूज होगी कि आपने कभी भी इनकम और एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट नहीं करना। Understood. Great. ठीक है, ये प्रूडेंस है अकाउंटिंग में। मतलब अगर प्रॉफिट या इनकम है और आपने उसको ओवरस्टेट नहीं किया और वो फ्यूचर में ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है ना, दैट्स गुड। लेकिन Yes. अगर आपने उसे Yes. ऑलरेडी ओवरस्टेट कर लिया था और वो फ्यूचर में कम हुआ तो फिर ज्यादती होगी फाइनेंशियल यूजर्स के साथ। The same Yes. way, the same way they tell you that if you have underestimated, understated the liabilities and expenses, आपने ऑलरेडी अंडरस्टेट कर दिए और फ्यूचर में वो ज्यादा निकले तो फिर ज्यादती होगी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। हाँ, लेट्स सपोज आपने जो है उन्हें ओवरस्टेट कर दिया, ज्यादा दिखा दिया और फ्यूचर में जाके वो कम हो गए तो फायदा ही है ना, एक्सपेंस ज्यादा कम होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। Right, so Yes. that is the prudence of, if we define what is prudence, so prudence is basically the exercise of caution while making judgments. And how? Like you should never overestimate the profits, income or assets, and Assets. you should never underestimate the expenses and liabilities, right? Right. Yes. Okay, अब जितने आईएफआरएस हैं, कोई अभी तक आईएएस जो है 20 से ज्यादा आईएएस हैं, कोई 18 जो है वो आईएफआरएस अभी तक आ चुके हैं, 2 पे काम ऑलरेडी हो रहा है। वो सारे तो दे ऑल वी विल बी टेलिंग यू और प्रोड्यूसिंग द सम स्पेसिफिक टॉपिक। लेकिन और वो क्वांटिटेटिव प्रोस्पेक्ट पे बात करते हैं, बट बिफोर द क्वांटिटेटिव प्रोस्पेक्ट देयर इज आल्सो अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल, जिसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, whenever you see the financial statements of any company or your company, can you please tell me जो published financial statements होती हैं उनमें कितने ईयर का डेटा होता है? 2 years. टू वाई? फॉर कंपैरिजन। ये किसने कहा? मैंने नहीं आपकी बात तो नहीं ना कोई मानेगा आपकी बात ठीक है So the ये बात- guideline, फाइनेंशियल the रिपोर्ट standard, yes, the जी जी, गो हेड। and the guideline of the standard practice of what we say auditors of. Actually, see, you both were right, this is for comparison, but who said you don't know? This is basically, it is written in the conceptual framework and that comes under the qualitative characteristics. Mm. Right, this is what we are going to Okay. study. Qualitative Yes. characteristics are the attributes that makes information provided in financial statements useful to others. The framework split qualitative characteristics into two categories: fundamental and enhancing. Now we'll read it. It says that अगर fundamental characteristics होंगी तो those financial statements will be more useful for the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, वसीम नाम है ना आपका? जी। वसीम साहब, मजे की बात यह है, जैसे आपने बड़ा, मुझे मजा आया, आपने कहा मैंने कहा है। अच्छा, आपने अगर कहा होता ना तो इस बात को कोर्ट में चैलेंज हो जाता। मैं नहीं, हमेशा, वकार साहब ने कहा। अच्छा वकार अच्छा साहब ने अच्छा, कहा। हाँ वकार, ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता था, भाई आप अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हैं? ठीक है। सही। अच्छा, अब होता क्या है, द थिंग इज, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूं, अपने स्टूडेंट्स को, दो चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि इकट्ठी लेके चलनी होती है हमें: अकाउंटिंग और जिस कंट्री में आप उस अकाउंटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस कंट्री के कॉर्पोरेट लॉ का थोड़ा सा नॉलेज। यस। क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ गाइड्स यू इनिशियली कि आपने क्या क्या अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग करनी है, एंड आफ्टरवर्ड्स यू रिपोर्ट दैट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। मतलब अगर लॉ आपको कहता है कि यू हैव टू प्रोवाइड ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने जो भी एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वहां उस कंट्री की है, तो आपने कौन से जो है वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, इधर इंटरनेशनल को, इधर एफआरसी, जो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं यूएस के, उनको फॉलो करना है, ऑस्ट्रेलिया वालों को फॉलो, यही तीन चल रहे हैं बेसिकली पूरे जो है ना, मेनली जो चल रहे हैं, जो ग्लोबली चल रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूएस के हैं, और एक आईएफआरएस है। दो ये अभी बात हो रही थी, ये इनका टारगेट था कि जितने भी ग्लोबली है ना स्टैंडर्ड सारे, ये मर्ज होंगे आईएफआरएस में, बट अभी देर इज टाइम। तो
anything in the reports, in the financial reports which are presented, anything that cannot go beyond what is stated in the conceptual framework and given standards. Even for comparison, अच्छाई के लिए भी आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक वो प्रूव ना हो फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स. अगर करेंगे तो वो बिदत हो जाएगी, राइट? अकाउंटिंग की बिदत हो जाएगी. ओके जी, लेट्स रीड इट. फंडामेंटल क्या है जो मेन जो होनी ही होनी चाहिए? द फर्स्ट वन इज रेलिवेंट. द इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट. नाउ कैसे इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी? इट हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स एंड इज प्रोवाइड इन टाइम टू इन्फ्लुएंस दोज डिसीजंस. दैट्स व्हाई अब ये नहीं हो सकता. अच्छा, लेट्स सपोज 2024 की अभी आ गई होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. डेफिनेटली ये अभी अप्रैल चल रहा है, कुछ की आ गई होंगी, कुछ की आने वाली होंगी, जिनका क्लोजिंग जो है 31 दिसंबर को होती है. अब लेट्स सपोज कोई Yes. कंपनी है, लेट्स सपोज कोई कंपनी है, वो 2023 की 2025 में पब्लिश कर रही है. भाई क्यों कर रही है? अगर कोई पूछे क्यों कर रहे हैं, भाई मेरी मर्जी, जैसे उन्होंने कहा भाई मेरी मर्जी, मैंने कहा है, तो नो वन कैन स्टॉप देम. बट आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखा है कि आपने टाइमली प्रोवाइड करना है. जो पिछले साल का डेटा है वो आपने टाइमली प्रोवाइड करना ही करना है. अच्छा, जब टाइमली प्रोवाइड करना है तो वो मटीरियलिटी हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा, मटीरियलिटी क्या बात करती है नॉर्मली? व्हाट इज बेसिकली मटीरियलिटी? एंड कैन एनीवन डिफाइन मटीरियलिटी? एनी आइडिया? Materiality. नो इश्यूज. आप देखिए, आई एम नॉट आस्किंग यू टू करेक्टली डिफाइन इट. अगर कहीं पे आप लोगों ने वो वर्ड आपके नजर से गुजरा है या डेफिनेशन गुजरी है, दैट इज ओनली बट जस्ट डिस्कशन के लिए. उसमें ये होता है ना कि मटेरियल मिस इन्फॉर्मेशन या उस मटेरियलिटी इसको किस तरह डिफाइन. अच्छा चले, मैं बताता हूँ, छोड़े रहने उसके दो. अंदर जो रिपोर्ट के अंदर जो मटेरियलिटी, आई मीन जो मटेरियल कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन, जो डेटा. गॉट इट, गॉट इट. देखिए, मैं नॉर्मली कहूंगा जब हम बात करते हैं ना मटेरियल मटेरियल की, तो लोग अक्सर समझते हैं कि फॉर एग्जांपल लाख इज 100,000 इज मटेरियल, 10 रुपीज इज नॉट मटेरियल. नॉर्मली जब बात की जाती है ना, मतलब फिगर्स की, बड़ी फिगर्स की, यस. तो हाँ नॉर्मली, बट दैट इज नॉट द केस. जो मटेरियल की डेफिनेशन है, मटेरियलिटी की डेफिनेशन है, वो कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन कैन बी मटेरियल इफ इट्स ओमिशन, ओमिट कर दी, और मिस रिप्रेजेंटेशन या गलत दे दी, कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर. राइट? अब वो 10 रुपए की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, अब वो जो है वो लाख रुपए भी की इंफॉर्मेशन हो सकती है. मैं इसकी अक्सर स्टूडेंट्स को देता हूं कि पाकिस्तान का अगर हम लोग टैक्स का लॉ देखें ना, तो पाकिस्तान के टैक्स के लॉ में स्लैब रेट्स यूज होते हैं कि इस तक अगर किसी की सैलरी होगी, इस थ्रेशोल्ड तक, तो इतना टैक्स लगेगा, इससे ऊपर जाएगी तो इतना टैक्स लगेगा. यस. अब हुआ क्या, लेट्स सपोज, मैं सपोज कर रहा हूं, किसी की सैलरी थी, स्लैब रेट था कि अगर 2 मिलियन से ऊपर सैलरी होगी तो, 2 मिलियन से नीचे होगी तो लेट्स सपोज 10% टैक्स लगेगा, 2 मिलियन से ऊपर होगी तो 20% टैक्स लगेगा. लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल ले रहा हूं. Right. अब उस बंदे की सैलरी हो गई 2 मिलियन प्लस 2,000, लेकिन टैक्स उसका 10% से वो अब 20% वाली उसमें चला गया, कैटेगरी में चला गया. तो फॉर दैट पर्सन 2,000 इज मटीरियल. वो कहेगा भाई सही. ना ही दो मुझे, क्योंकि वो थोड़े से बढ़ने से उसके लिए है, 2 मिलियन के सामने 2,000 इज नथिंग, वो है ही कुछ नहीं है. लेकिन उसके लिए वो 2,000 मटीरियल है, क्योंकि वो डिफरेंट टैक्स स्लैब में आ गया. तो सिंपल इफ वी डिफाइन मटीरियलिटी, तो मटीरियलिटी इज एनी इंफॉर्मेशन, एनी, if its omission or misrepresentation can alter the decision of its user, तो वो मटेरियल होगी. तो आपने जब भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते होना है, तो आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो, किस लिहाज से, टाइमली हो, और मटेरियलिटी के हिसाब से वो रेलिवेंट हो. और वो रेलिवेंट कब होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट कब होगी? जब उसमें प्रिडिक्टिव और कंफर्मेटरी वैल्यू होगी. अब ये दोनों क्या है? प्रेडिक्टिव मींस के कोई भी पोटेंशियल शेयर होल्डर उस इंफॉर्मेशन को देख के डिसीजन ले सकेगा कि वेदर आई शुड बी इन्वेस्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. नाउ दैट इज प्रेडिक्टिव. एंड व्हाट इज कंफर्मेटरी? कंफर्मेटरी ये है कि ओके, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्या वो कंफर्म हो सकती है पास्ट डेटा से और नॉट.
तो जब किसी भी इंफॉर्मेशन में प्रिडिक्टिव और कंफर्मेटरी पावर हो, then that information is called relevant. So the first fundamental जो information है, that is relevant. The information should be relevant. I'm again and again reminding you, जो आज का थोड़ा सा लेक्चर होगा वो बेसिक्स के ऊपर है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। आगे से फिर हमारे नंबर्स शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता बीच में। ओके, अकाउंटेंट्स नॉर्मली जो जब कॉन्सेप्ट्स को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है, समझ लें ये अकाउंटिंग की एबीसी है। Yes, yes, Okay, that's very important. this is the ABC of accounting. Okay जी, second qualitative characteristics of information, what is that? That is faithful. The information should be faithful. अच्छा, information faithful कब होगी भाई? वो जब तीन चीजों से पूरी होगी। उसमें तीन चीजें होंगी। वो क्या तीन चीजें होंगी? जब वो कंप्लीट होगी, when that will be Yes. free from error, when that will be neutral means अगर लॉस आया लॉस बताओ, अगर प्रॉफिट आया प्रॉफिट बताओ। उसको मैनेज ना करो, अर्निंग्स को मैनेज ना करो। अच्छा, ये तीन चीजें कब मिलेंगी? ये तीन चीजें जब तब मिलेंगी जब आपने उसकी सब्सटेंस को करेक्टली रिपोर्ट किया होगा। नाउ व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस इज, देखिए, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, उसके दो सब्सटेंस होते हैं। वन इज लीगल सब्सटेंस, वन इज इकोनॉमिक सब्सटेंस। मतलब फॉर्म कह लें, सब्सटेंस कह लें, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक लीगल एस्पेक्ट कह लें, चले और समझ आ जाएगी। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, लीगल एंड इकोनॉमिक। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के, मोर देन 80% ट्रांजैक्शंस के लीगल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट सेम ही होते हैं। दे आर सेम। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को चीजें बेची, सेल्स की, उधार पे सेल्स की, तो आपने एंट्री पास की होगी भाई, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ओके फाइन। इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? कि आपने किसी से पैसे लेने हैं भाई, दैट्स ओके। लीगल एस्पेक्ट क्या है? कि डेफिनेटली आपने किसी से पैसे लेने हैं, वो आपका डेटर है, उसे आपने पैसे कलेक्ट करने हैं, उसने आपको पैसे देने हैं। दोनों एस्पेक्ट सेम है। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे जो क्या कहना चाहिए, इवेंट होते हैं जिसमें लीगल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट चेंज हो जाता है। अब मैं एग्जांपल देने लगूं, आप दोनों में से किसी ने लीज पे गाड़ी ली है कभी? Yes. फाइनेंस लीज पे, मैं फाइनेंस लीज की बात कर रहा हूं, मैं इस्लामिक लीज नहीं बात कर रहा, जो नॉर्मल फाइनेंस लीज होती है। Yes, लीज पे है, लीज पे या कंपनी ने ली हो। अच्छा, आपने जी कभी, जी एग्जैक्टली, आपने कभी वो जो लीज पे गाड़ी होती है, उस उसके जो उसका बताका होता है, जो कार्ड होता है उसका, उसके ऊपर नाम देखे, ओनर का नाम क्या होता है? नहीं, वो नहीं हाँ, करना। कभी कभी देखिएगा उसका नाम ना, जितनी देर के वो फाइनेंस लीज होती है, उसके ऊपर उसका नाम, जो ओनर का नाम होता है ना, वो बैंक का नाम आ रहा होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आ रहा होता है जिससे ली होती है। सही। जब तक वो फाइनेंस लीज की बात कर रहा हूं, जब तक वो पीरियड कवर नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर नाम, जो ओनर है, लीगल ओनर है, वो बैंक है या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने लीज पे गाड़ी ली है। लेकिन वो गाड़ी आपके पास होती है, कंपनी के। आप, व्हेनेवर आई से ना आप, तो दैट मींस इंडिविजुअल नहीं, क्योंकि हम ये सारा आईएफआरएस आईएएस इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं पढ़ते। we did it for entity, and entity में भी कंपनी के लिए। we do it for companies and most probably public limited companies, even private में भी जरूरी इतना नहीं होता अगर वो छोटी कंपनी हो। अच्छा, अब हुआ क्या? यूज कौन कर रहा है? कंपनी। कंपनी। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक उसकी एस्पेक्ट देखें, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ओनर जो है वो कंपनी है। हम ये भी बात करते हैं इंश्योरेंस नहीं है, मतलब फिर कॉम्प्लिकेशन आएंगी ना। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस नहीं है। लेट्स सपोज वो गाड़ी ठोक दी, वो गाड़ी किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, आपके ड्राइवर ने, उसको ठीक कौन कराएगा? कंपनी। ठीक तो कंपनी कराएगी। ठीक कंपनी कराएगी ना, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब अगर अगर एक बंदे को नहीं पता कि ये लीज की गाड़ी है या नहीं, तो वो जब उसके राइट्स और उसके जो लॉसेस है, सारा कुछ वो कंपनी के पास है, लेकिन लीगल ओनरशिप जो है वो बैंक के पास है। अब यहां पे इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि लीगल सब्सटेंस और आ गई, और उसकी जो इकोनॉमिक सब्सटेंस है वो और आ गई। दो डिफरेंट सब्सटेंस हो गई या ऑस्पेक्ट हो गए। अकाउंटिंग कहती है, फ्रेमवर्क कहता है कि आपने जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो आपने इकोनॉमिक सब्सटेंस को प्रेफरेंस देनी है रादर देन लीगल को।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, चाहे वो गाड़ी लीगली बैंक के नाम होगी, लेकिन आपने अपने अकाउंट्स में उसे शो करना है, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग दैट एसेट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम्म, एंड दैट्स वाई आपने कभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं? जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो लीगली दे आर सेपरेट एंटिटीज, सही। बट कंसोलिडेटेड में तो उन्हें सारों को इकट्ठा करके बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जी इकोनॉमिक फॉर्म ये है कि वन ग्रुप इज कंट्रोलिंग ऑल द कंपनीज, जबकि लीगली जी वो डिफरेंट है। तो फिर वो क्या कहता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहती है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है, दिस द सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहती है, द इकोनॉमिक सब्सटेंस शुड बी प्रेफर्ड ओवर लीगल फॉर्म। तो इंफॉर्मेशन फेथफुल कब होगी? जब आप इकोनॉमिक सब्सटेंस को शो करेंगे ओवर द लीगल फॉर्म। और वो कैसे होगी? वो फिर कंप्लीट होगी, वो फ्री फ्रॉम एरर होगी, और वो न्यूट्रल न्यूट्रल। होगी। ठीक हो गया जी? ये सही। दो तो बेसिक है जो कि होनी ही होनी चाहिए। वो कहता है उसके साथ चार और हैं, वो इसको इनहेंस करेंगी क्वालिटी को। पहली क्या है? कंपेरेबिलिटी। ये जो आपने बताया कि भाई जो 2 साल का डाटा है वो किस लिए होता है? कंपैरिजन के लिए होता है। तो वो कहता है कंपेरेबिलिटी कैसे अचीव करोगे? इस तरह अचीव करोगे कि 2 साल का डाटा दोगे, और 2 साल के डाटे से कैसे क्या पता लगेगा? ये पता लगेगा कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। मतलब पिछले साल में लेट्स सपोज आपके प्रॉफिट्स थे लाख के, 100,000 के, इस साल में आपके प्रॉफिट्स हैं 25 लाख के। भाई क्यों? वाई? व्हाट हैपेंड? तो फिर नोट्स में हम्म, लिखा होगा कि भाई अगर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज हुई है तो नोट्स में लिखा होगा, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चीज हुई तो भाई शेयर होल्डर को पता लग जाएगा कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ होने वाला है, शायद ओवरस्टेट किया जा रहा है। ये अगर एक साल में 1 लाख से 25 लाख पे गया है, तो शायद अगले साल में ये वापस 50,000 पे चला जाए। तो नहीं भाई, देखो इतनी वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और कंपेरेबिलिटी yes, कैसे होगी? डिस्क्लोजर की बेसिस पे। डिस्क्लोजर में क्या होगा? आपके जितने नोट्स टू द अकाउंट्स हैं उसमें डिप्रिसिएशन के मेथड्स रिपोर्ट होते हैं, उसमें इन्वेंट्री के मेथड्स रिपोर्ट होते हैं, उसमें आपके जो है अदर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें आपकी जजमेंट्स रिपोर्ट होती हैं। तो जब आप डिस्क्लोज करते हैं इसको, तो देन ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इनहेंस। देन वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाई हो सके चीजों को। वेरीफाई कैसे होगा? नोट्स टू द अकाउंट्स प्रोवाइडेड है तो वेरीफाइबिलिटी है। टाइमलीनेस, टाइम टाइम पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया तो वो भी इनहांसिंग है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी। अच्छा, इसमें एक बात आती है, कहा जाता है डू नॉट, अभी जितने भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं ना, उनकी कोशिश ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाइड किया जाए। आप देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी जिसे इक्विटी स्टेटमेंट कहते हैं। दे आर वेरी सिंप्लीफाइड। उनका जो फेस ऑफ द स्टेटमेंट है वो बहुत थोड़ी सी चीजें हैं। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होती है, दैट गिव्स यू जीपी। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, दैट गिव्स यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से अदर एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, अदर इनकम ऐड होती है, दैट गिव्स यू इनकम बिफोर टैक्स एंड द इंटरेस्ट। उसमें से टैक्स, yeah, इनफैक्ट टैक्स, PBT, उसमें से टैक्स माइनस yes, होता है एंड यू गेट द नेट इनकम। नाउ ये सिंप्लीफाइड है। वो कहता है बाकी की चीजें नोट्स में दो, क्योंकि अगर यहां पे कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी की मुश्किल आ जाएगी। ठीक हो गया जी? अच्छा, एक और चीज बता दूं, अंडरस्टैंडेबिलिटी वो कहता है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि वो बंदा अंडरस्टैंड कर सके जिसको नॉलेज है अकाउंटिंग का। अब एक इंजीनियर को आपको जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो तो वो नहीं पढ़ सकता भाई। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट डीम टू प्रिपेयर फॉर दैट इंजीनियर, राइट? yes. तो दीज ऑल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉर दोज जो कि इसको समझ सकें। अच्छा, यहाँ the next one is the financial statements are made of only 5 things. Like if I ask you what are 2 elements of water? वाटर का फॉर्मूला नॉर्मली H2O होता है ना, तो what are 2 elements of water? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O, हाँ, hydrogen, oxygen, yes, hydrogen oxygen. Okay, only 2 things, when they are mixed together, that becomes the water. The same thing is yes, here as well. Financial statements are made of with 5 elements only. There is not the sixth element. अगर कोई छठा या सातवां या आठवां होता है वो इन्हीं का काउंटर होता है, वो एलिमेंट नहीं है। ओनली 5 elements, एंड दोज 5 elements आर बेसिकली, वी ऑल नो, दोज आर एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस।
Now, these are not the definitions on your screen. I'll not call them the definitions. These are the criterias. Which criterias? These are the criterias against which the auditor will be assessing whether the entity has reported their data and that data is relevant or not, and whether that data is faithful or not. Which criteria they will be using? The criteria on your screens, right? That is not the definition. That is basically the criteria. Now, if I ask you, what is asset? Anyone? Again, I Yeah, don't. Yeah, please go ahead. company have an assets to generate, I mean, the revenue, or I mean, to use it in a, it's to produce, you can say, and then we say the type of assets like, I mean, Very no, good. current assets, non-current assets, like, Current for assets and that. non-current. Like if I'm asking you, you are telling me the types of the assets and all these based on the experience and the working you are doing. That is okay, fine. That is operational definition is okay. But let's suppose I give you the scenario. You have like your company have reported that we have 1 million of asset with us, right? 1 million of assets, Yes, 1 million dirhams asset with us. Auditor will raise the question, why are you saying these 1 million as an asset? It can be your liability as well. Tell me why you are saying, okay, I have this 1 million assets. So what should be your answer? Your answer should be, I'll first tell, then we'll study this definition as well. You will say, dear auditor, these 1 million assets which we have reported in our financial statements in balance sheet, they are the resources which are controlled by us. So first yes, is controlled by us. There is not written owned by us. Why it is not written owned by us? Because we just studied the substance over form concept. Substance over form concept says that you can claim any asset which is under your control, even you don't have ownership of that. yes, Like yes. legal So, prospect is yeah, not important, but the control, the economic, economic prospective is important. So first thing, you have to prove to the auditor, yes, we have a resource. What is the resource? Resource is basically what you are telling. You will be using it operationally to generate the revenues. So that is a resource. One thing is you cannot use it as a resource. I'll be telling you the further examples of that. So first one is a resource which is controlled by the entity. This is one thing. Second, how you controlled it from past event. In past something happened. You will not say that in future we'll get it, because we report financial statements about the past data, not the future data. So a present economic resource controlled by entity from past year. And what it will do? It will generate and it will give economic benefit to the entity. So three things. One, a resource controlled by entity from past event, and it will give you the future economic benefit. That is asset. Now, I'll explain you with that one. Let's suppose there is a company, I say, the driving school. Okay, there is a driving school, and you have okay, reported that we have 1 million dirhams of cars, vehicles with us, right? Auditor said, okay, auditor said, okay, I want to see. They actually they do stock taking. So they said, okay, let me see. I want to confirm it whether you have or not. You went there, you had three big buses or big, like say, shovels or whatever. That was the huge machinery, but that was not operational. So that is not actually the resource. You are controlling it, okay, or you are owning it, that's fine. But is that resource? Resource means, can it generate economic benefit for you in future? No, it cannot, because no, it's not operational, no, right? yes, So auditor will say, oh no, this is objection, this is my objection. So how the auditor will say, okay, fine, everything, vehicles are fine, they will be operational, vehicle will be definitely the auditor will not be checking each and every vehicle. They will be doing it yes, on sampling basis, randomly. randomly Mm. sampling basis. So the vehicle should be in operations.
The vehicle should be in your control. They will be in control. How they will be in control? He will be looking at the documentations. Like from the past year, these vehicles were in your control. You were earning from it. The students were getting the trainings on that. Second thing, and definitely if you are using it, it has in a good position, so it will give you the future economic benefit. Okay, 3 checks are done. Fine, that is your asset. This is how the auditor will be checking, and auditor will say, okay, these assets are being reported as per the conceptual framework. Got it? So Yes. next time whenever someone asks you what is asset, you'll not be telling that this is operation and this the type of asset current, and that is next level things. Like when we are explaining something, the first thing you should keep in your mind, what is asset? Asset is will be, if anything will be asset of the company entity, if it will give you three things. It is a resource controlled by entity Control. from Hmm. past event, and future economic benefit will inflow to the entity by using that resource. If that is not, there will be no future economic benefit. That cannot be written as a resource. There will be objective from auditor, right? Yes. True. Now the second element is liability. Now liability, what is liability? Again, there will be three things from liability. This is a present obligation. करंट ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर की ऑब्लिगेशन नहीं है, पास्ट की ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि पास्ट की ऑब्लिगेशन होगी तो वो फिलफिल होगी, दैट विल बी डन Yes. ऑलरेडी. That is a present obligation. Obligation is something you have to fulfill. So that is a present obligation from past event. दो चीजें हो गई, present obligation from past event, और वो क्या Yes. obligation है? That obligation is that economic resources will be outflow from the entity. एंटिटी से वो आउटफ्लो होंगे. लेट्स सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल. आपने किसी से बैंक से 1 मिलियन दिरहम्स कंपनी ने ली. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेनेवर आई से आपने मींस एंटिटी. एंटिटी हैड Yes. बोरोड entity had borrowed say 1 million dirhams from some bank. Now when they will be, currently if we say, so it will be returned after 2 years, let's suppose. So currently that's your present obligation. Yes, that is there. Yes. How? From past event, because एक साल पहले लिया था. And when you will settle that, the future economic benefit will outflow. अच्छा, वो future economic benefit कैसे outflow होंगे? आप उसे कैश देंगे, या लेट्स सपोज आप उसे इन काइंड कोई भी अपना रिसोर्स दे देंगे उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, राइट? तो थ्री थिंग्स आर देयर. Now if you have reported say 500,000 of liability in your balance sheet, in your statement of financial position, so auditor will verify whether these three things are the criteria are fulfilled or not, whether that is present obligation from past event, and whether the future economic benefit will outflow or not. If all three criteria are done, auditor will say okay, no objection, right? The third thing, equity. What is equity? This is a residual interest in assets of entity after detecting all the liabilities. I really like this line, I really like this line. Wait, let me open the Word document. Just a minute. When I'll write one thing, you'll remember that you have studied in very basic, basic course of accounting. That was accounting equation. That was that asset is equals to equity plus liability, right? Definitely, what happens if I say in a different way? Just wait. अच्छा, होता क्या, जब हम बैचलर्स में पढ़े होते हैं हम इस पे, हमको तो ये तो आसान सी बस करने के लिए होती है. What happens? Actually, these are the sources of finances. These are the sources of finances. Either you will get the finances from your shareholders, or you will get the resources, financial sources from loans. There are only two sources, right? Even on individual level, either from where we can get money, either we have our own money or we'll be borrowing somewhere. So own money is equity. If we are borrowing, that is liability. And both, when we have both, that is equal to our assets. Simple baat hai.
अच्छा, अब वो क्या कहता है इक्विटी को? वो कहता है equity, this is a residual interest in the asset of the entity after detecting all the liabilities. What happened? आपने लोन भी लिया, आपने इक्विटी भी है आपके पास, उन दोनों को इकट्ठा किया तो आपके पास एसेट बना। अब हुआ क्या, जब आपने लायबिलिटी खत्म की अपने में से, तो हुआ क्या, आपने एसेट्स में से, सॉरी मैं इसको नीचे लिखता हूं, एसेट्स, कॉपी पेस्ट, लेट मी कॉपी पेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। Yes. ओके, आपने क्या किया, आपने इसको उठा के इस साइड पे ले आए और एसेट्स में से माइनस कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, आप सारी लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं, राइट? अच्छा, लायबिलिटी Yes. को पे ऑफ करने के बाद जो एसेट रह गए, अगर मैं यहां पे लिखूं एसेट्स आफ्टर लायबिलिटी, तो वो किसके हैं, वो इक्विटी होल्डर्स के हैं ना। Yes. तो Yes. दैट इज व्हाट इट इज रिटन के Yes. नाउ रीड दिस लाइन, दिस इज द रेजिडुअल Yes. इंटरेस्ट जो बाकी रह गया इन द एसेट्स ऑफ द Yes. एंटिटी आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल द लायबिलिटी। Yes. Got it? True. So basically that Correct. comes from that accounting equation. Yes. Yes. Further, True. the fourth one, मैं दूसरों को भी पूछ लूं हमारे साथ हैं कि नहीं। वकास उमर साहब, यू आर देयर? जी 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 सर जी। ओके, got it okay, the fourth one, that is income, जो कि देखिए, अच्छा एक और चीज, ये तीनों इकट्ठे क्यों है? एक्सक्यूज मी, जी जी थोड़ा प्लीज, गला खराब है तो कफिंग बार बार होती है, इस वजह से मैंने ना म्यूट किया हुआ है। कोई बात नहीं, True. इजी, ओके, जी वी आर देयर, जी ठीक है। अच्छा, जी अब ये जो तीनों हैं, दे आर पार्ट ऑफ, दे फॉर्मुलेट योर बैलेंस शीट। आप देखें बैलेंस शीट में यही तीन चीजें होती हैं, जी। ठीक है। और मजे की बात बताऊं तो ये जो मैंने ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, अगर इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग वर्टिकल ले जाइए, हॉरिजेंटल है ना, इसी को वर्टिकल जी। ले जाए तो यही बैलेंस शीट है, दिस इज द बैलेंस शीट, सही। सही। राइट? तो सही। विद एसेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, अगर हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं तो वो किस में रिपोर्ट करेंगे, वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे, राइट? जी। हाँ, ये भी बात है जी। कि जो इक्विटी आएगी ये कहां से आएगी, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी से पूरी बन के आएगी, राइट? सही। सही। अच्छा, अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बनानी है, जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। वो कैसे बनेगी, वो बनेगी इनकम और एक्सपेंसेस, बिकॉज इन द इनकम स्टेटमेंट हमारे पास दो ही कैटेगरीज होती हैं, या इनकम होती है या एक्सपेंसेस होते हैं। अब उसको फ्रेमवर्क कैसे डिफाइन करता है? फ्रेमवर्क का डिफाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑडिटर विल रेज क्वेश्चन इफ यू हैवंट रिपोर्टेड द इनकम और एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क, जो कि फ्रेमवर्क क्राइटेरिया देता है। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या क्राइटेरिया देता है? वो कहता है income, this consists of increase in assets or decrease in liabilities that results in increase in equity other than those results to contribution from holders of equity claims। आपने बिल्कुल भी ये मुश्किल को घबराना नहीं है कि यार ये क्या कह रहा है। पहले आपने समझना है इनकम क्या है, दैट इज इंक्रीज इन एसेट्स और यस। डिक्रीज इन लायबिलिटी। देखें होगा क्या, जब आपके पास इनकम आएगी, इनकम कैसे आएगी, प्रॉफिट आएगा ना, तो प्रॉफिट सही। जाएगा कहां? प्रॉफिट किस फॉर्म में आएगा? प्रॉफिट कैश की फॉर्म में आएगा ना, या रिसोर्सेज की जी। फॉर्म में आएगा। तो रिसोर्सेज क्या करेंगे, आपके एसेट्स को बढ़ा देंगे, सही। या उन एसेट, वो जो रिसोर्सेज आएंगे उससे आप अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। तो इनकम सही। क्या है, इनकम विल ईदर इंक्रीज योर एसेट और डिक्रीज योर लायबिलिटी, और अल्टीमेटली उससे इंक्रीज क्या होगी, इक्विटी इंक्रीज होगी। लेकिन ये वो इंक्रीज इन एसेट्स है या डिक्रीज इन लायबिलिटी है जो कि इक्विटी होल्डर से नहीं आया। इक्विटी मतलब इक्विटी होल्डर्स ने और कंट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब आपने शेयर्स नहीं बेचे। देखिए शेयर्स बेच के भी तो सही। रिसोर्सेज आते हैं ना, तो जी। शेयर्स बेच के रिसोर्सेज नहीं आए। ये अदर देन शेयर बेचे हुए जो आपके पास रिसोर्सेज आए हैं, जिसे आपने एसेट बढ़ाए हैं या जिसे आपकी लायबिलिटी कम हुई है, तो वो इनकम है। बस इनफ है, दैट्स इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द इनकम। अब होगा क्या, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर विल आस्क यू, ओके व्हाई यू हैव रिपोर्टेड दिस इनकम एज इनकम, और यू विल से दैट these are increasing our assets or decreasing our liabilities, and these are not these doesn't come from the equity holders, so that's our as income। अच्छा, एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस इसका ऑपोजिट है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है। अगर इनकम यस। इंक्रीज इन एसेट है तो एक्सपेंस डिक्रीज इन एसेट होगा। यस। अच्छा, इनकम जो है वो डिक्रीज इन लायबिलिटी है, तो एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज इन लायबिलिटीज होगा। और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा आपकी इक्विटी को। अदर देन सही।
अदर देन कि आपने इक्विटी होल्डर्स के क्लेम्स वापस कर दिए। तो इनकम के बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपेंसेस है, तो ये उसका क्राइटेरिया हो गया। तो देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनसे मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, एंड दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ये नीचे मैंने लिखी थी, डेफिनेशन लिखी थी उसकी। अच्छा, ये जो साथ में ये 4.4 ये मेंशन हुआ है ना, ये सारे वो मेंशन हुए हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के कहाँ पे, उसका रेफरेंस क्या है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 जो है सब आर्टिकल या आर्टिकल भी कहते हैं, आर्टिकल 4 सब आर्टिकल जो है 24, उसमें है ये सारे लिखे हुए। गॉट इट जी। जी। अब आते हैं जी हम लोग नेक्स्ट पे, मेजरमेंट बेसिस। देखिए, कोई भी जो स्टैंडर्ड है ना, आईएफआरएस हो गया या आईएस हो गया, मैं उस पर भी आऊंगा कि आईएस और आईएफआरएस में क्या फर्क है, आज हम ये सब क्लियर करेंगे। कोई भी जो आईएफआरएस है या आईएस है, we have already discussed that it will be discussing about one specific topic। जैसे इन्वेंट्रीज, IS2 इन्वेंट्रीज को डिस्कस करता है। अच्छा, उसको डिस्कस कैसे करेगा, वो कहेगा इन्वेंट्रीज को रिपोर्ट कैसे करना है, डिस्क्लोज कैसे करना है। अगर हम बात करें कि मेनली कोई भी आईएस या आईएफआरएस किसी भी एक टॉपिक के बारे में क्या चीजें बताता है, क्या गाइडलाइन बताता है, तो हम दो चीजें कहते हैं। हमें कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आईएफआरएस किसी भी टॉपिक के ऊपर दो चीजें बताता है। एक, उसे मैयर कैसे करना है, सेकंड, उसे रिकॉग्नाइज कैसे करना है। राइट, रिकॉग्निशन यस। एंड मेजरमेंट, ये दो इश्यूज हैं जो कि हमें स्टैंडर्ड गाइड करता है। अच्छा, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब भी कोई ऐसा रिसोर्स होगा जो कि कंट्रोल किया होगा और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा तो वो एसेट होगा। अच्छा, कोई भी ऑब्लिगेशन होगी वो लायबिलिटी होगी, कोई भी रेजिडुअल इंटरेस्ट होगा वो इक्विटी होगी, कोई भी इनकम जो इंक्रीज एसेट होगा डिक्रीज लायबिलिटी होगी, जिसे इंक्रीज करेगी इक्विटी अदर देन इक्विटी कंट्रीब्यूशन वो इनकम होगी, और वाइस वर्सा वो एक्सपेंसेस होंगे। तो रिकग्निशन का तो मसला हल हो गया। बल्कि ठहर जाए, मैं यहां पे आपको एक और चीज भी कर देता हूं, अच्छा हो जाएगा यहीं पे। रिकग्निशन की बात अगर आ गई, थोड़ा सा आई नो यू नो दैट, बट स्टिल एक दफा मैं इसको अक्सर कहता होता हूँ, ये अकाउंटिंग का तावीज है। जब मैं यस। बिल्कुल नए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ ये अकाउंटिंग का तावीज है। तो लेट मी मेक दैट तावीज फॉर यू पीपल एज वेल। ओके जी, बल्कि इसमें है, एक और ऐड करता हूँ। दो दिस इज वेरी बेसिक बट स्टिल मैं लिख देता हूँ। हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स थे हमारे पास तीन, जो कि एसेट्स हैं, जी। लायबिलिटीज हैं, जो कि ठीक। इक्विटी है। ये तीनों हमारे पास बैलेंस शीट के हैं। और इनकम स्टेटमेंट के कौन से हैं, अच्छा इनके नए नाम, इनकम स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसका बैलेंस शीट का। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ये तीन हैं हमारे पास। यहाँ जी। पे मैं अगर डाल सकूं, एक मिनट सिर्फ, अच्छा हो जाएगा। इजी हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इनकम, एंड देन वी हैव एक्सपेंसेस। एक्सपेंस। राइट, मुझे इसको मर्ज यस। करने दें, लेट मी मर्ज इट एंड लेट मी मर्ज इट। दीज आर फॉर बैलेंस शीट, बीएस लिखता हूं मैं, और उसका नया जी। नाम जो है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यस। और लिख के डालता हूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, और जो नीचे वाले हैं वो इनकम स्टेटमेंट के हैं, यस, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके साथ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी लगती है, वो या अलग बना लेते हैं या इसी में ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है जी हमारे पास, अब हमारे पास है इंक्रीज और हमारे पास है डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है, या एसेट्स इंक्रीज होंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी, इक्विटी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, या वो डिक्रीज होंगे। अच्छा जी, जब एसेट इंक्रीज होंगे तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे डेबिट के साथ, और जब डिक्रीज होंगे तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे क्रेडिट के साथ। ठीक है जी, जब लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे क्रेडिट के साथ, जब डिक्रीज होंगी तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे डेबिट के साथ। अच्छा, इक्विटी जब इंक्रीज होगी तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे क्रेडिट के साथ, जब डिक्रीज होगी तो हम करेंगे डेबिट के साथ। लेट मी टेल यू, इक्विटी बहुत रेयरली डिक्रीज होती है। यस। ठीक है, इक्विटी, अच्छा इक्विटी के अगर हम लोग फर्दर बात करें ना, इक्विटी में आता क्या है, अगर मैं यहां पे
मेन मेन उसके हेड लिख दूं ना, में जाके एंटिटी, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो इक्विटी होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें कॉमन स्टॉक होता है जिसे हम लोग कॉमन स्टॉक भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग शेयर्स भी कह सकते हैं। तो मैं CS लिख Yes. देता हूं, कॉमन स्टॉक होते हैं, ठीक है। अच्छा, Yes. उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, ठीक है Yes. जी। उसमें रिजर्व्स होते हैं, हमें रिजर्व्स का बहुत बड़ा जो है वो ग्रुप होता है। मैं इसको सारे को इसमें Yes. जो है रियलाइज रिजर्व भी होते हैं, अनरियलाइज भी होते हैं, उसमें मैं नहीं फिलहाल आ रहा। तो रिजर्व होते हैं, ठीक है जी। मैं अभी बस इतना ही बात कर रहा हूं और मैं नहीं लिख Yes. रहा। मेन मेन ये 3 चीजें होती हैं। आपके जो डिविडेंड जब पे होते हैं ना, तो वो रिटेन अर्निंग्स में से पे होते हैं, Yes. ठीक है। तो जब डिविडेंड पे होते हैं ना, तो फिर आप इक्विटी को डेबिट करते हैं, राइट। Yes. और फिर एक और भी हम पढ़ेंगे, IAS 16 में पढ़ेंगे। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां पे ये CS है ना, ये डेबिट हो रहा हो। ज्यादातर रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व्स डेबिट होते हैं, तो इसलिए इक्विटी डेबिट होती है। तो नॉर्मली जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में ये तीनों चीजें आती हैं। तो ज्यादातर इक्विटी क्रेडिट ही होती है, लेकिन रेयर चांसेस में वो डेबिट भी होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब इनकम इंक्रीज होगी तो विल डू इट विद क्रेडिट, हम क्रेडिट Yes. एंट्री करेंगे। और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। यहां Debit. पे भी मैं आपको बता दूं, इनकम जो है वो रेयरली डेबिट होती है। Yes. इनकम जो है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनकी जो इटसेल्फ सब्सटेंस होती है ना, इटसेल्फ जो उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी एग्जिस्टेंस होती है, वो इस नेचर की होती है कि उसका ऑपोजिट पॉसिबल नहीं होता। सही. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुर्सी है, चेयर है। वो चेयर या तो होगी या नहीं होगी, वो नेगेटिव चेयर नहीं हो सकती। Yes. गॉट इट ना। मतलब हम उसे Yes. नेगेटिव चेयर नहीं कर सकते। इसी तरह इनकम जो है ना, वो ज्यादातर होती है या नहीं होती, नेगेटिव बहुत कम होती है। अगर नेगेटिव होती है तो वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद वो लॉसेस होते हैं। वो इनकम जो रेवेन्यू का, हम उसे नहीं कह सकते वो। गॉट इट। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक डिस्कशन है, मैं जो मेरा थीसिस चल भी रहा है और थीसिस किया भी, यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्कशन आती है कि ये इनकम भाई रेवेन्यू को कह रहा है कि प्रॉफिट्स को कह रहा है। अगर तो प्रॉफिट्स को कह रहा है तो फिर तो डेबिट ठीक है, बात ठीक है। लेकिन अगर रेवेन्यू को कह रहा है तो रेवेन्यू तो बहुत रेयर जो है वो डेबिट होता है। क्योंकि इवन जब आप रिटर्न करते हैं ना, सेल्स रिटर्न होती है, तो आप सेल्स को डेबिट नहीं करते, आप सेल्स रिटर्न को जो है वो डेबिट करते हैं, जो कि सही. जो कि कॉन्ट्रा टू सेल होती है। वो सेल्स में से Yes. माइनस होती है, वो सेल्स डेबिट नहीं हो रही होती। Direct income. Yes. गॉट True. इट ना। तो ये छोटी छोटी जी चीजें जी. हैं जो कि समझने वाली है। अच्छा, एक्सपेंसेस जो है जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। अगेन, एक्सपेंसेस बहुत रेयरली क्रेडिट होते हैं। काउंटर एंट्री ना आ जाए, कॉन्ट्रा एंट्री ना आ जाए तो आ जाए, एक्सपेंसेस या तो होंगे या नहीं होंगे। क्रेडिट नेगेटिव एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं भाई। नेगेटिव एक्सपेंसेस इज बेसिकली योर इनकम। Yes. गॉट इट ना। नेगेटिव एक्सपेंसेस योर इनकम। Yes. लेकिन It's very rare. देर आर वेरी रेयर चांसेस जहां पे जो है ना कॉन्ट्रा सम टाइम होता है। तो दे आर देयर चांसेस आर देयर। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये तावीज है अकाउंटिंग का। आई विल बी सेंडिंग यू दिस फाइल एज वेल, नो इश्यूज एट ऑल। ये जब बेसिक होते हैं या रिवीजन करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हम लोगों ने ये रिकग्निशन का तो पढ़ लिया कि भाई रिकग्नाइज कैसे करना है। बल्कि मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है जी, रिकग्निशन हम लोग इस तरह करते हैं इसकी। ये बात कर ली हम लोगों ने। अच्छा, अब बात आई मैयर कैसे करेंगे। मतलब देखिए, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एसेट खरीदा, ठीक है। हम लोगों ने एसेट खरीदा, तो एसेट क्या था, हम लोगों ने पता है भाई इसको क्या, क्यों एसेट है, ये रिसोर्स है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। ओके, एसेट है। एसेट की हमारे पास आ गया, तावीज ने कहा जी एसेट आया तो डेबिट कर देंगे एसेट को। हमने एंट्री पास कर दी, एसेट डेबिट हो गया। मैं क्रेडिट नहीं कर रहा, जाहिर बात है कैश में खरीदोगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। एसेट एक तरफ आ रहा सही. है, एक तरफ जा रहा है। तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एसेट खरीदा, हम लोगों ने एसेट को डेबिट कर दिया, एसेट को क्रेडिट कर दिया। सवाल ये आया, किस वैल्यू से भाई, कितनी वैल्यू से? क्या उस वैल्यू से कि जो परचेज किया था, जो इनवाइस की थी? क्या उस वैल्यू से कि जो हमें यहां तक बुलाने पे पड़ा था, मतलब जो हमारी प्रेजेंट लोकेशन है उसमें बुलाने से पड़ा था? Yes. अच्छा, ये सारी चीजें एसेट के बारे में तो हम एसेट के IAS में पढ़ेंगे, जो IAS 16 है।
नॉर्मली हमें फ्रेमवर्क क्या कहता है, फ्रेमवर्क हमें 4 बेसिस देता है मेजरमेंट की। क्या आपके पास 4 मैक्सिमम जो है ना वो जो ग्राउंड्स हैं जिसकी बेसिस पे आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स क्या है? वो कहता है देयर आर नंबर ऑफ मेजरमेंट बेसिस मेंशन्ड इन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और वो 4 है। सबसे पहला जो मोस्टली यूज होता है उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसे क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कि ज्यादातर 90% केसेस में हिस्टोरिकल कॉस्ट ही यूज होता है। व्हाट इज दैट? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश पेड और कंसिडरेशन गिवन फॉर आइटम। द ट्रेडिशनल अप्रोच टू अकाउंटिंग हैज द फॉलोइंग फीचर। अच्छा, करते क्या है, हम लोग इसको रीड तो बाद में कर लेंगे। इसमें सिंपल सा ये होता है, लेट्स सपोज एसेट की बात करते हैं, तो आपने एसेट 2 साल पहले खरीदा, अब आप उसमें डेप्रिसिएशन लेते जाएंगे, उसे कैरिंग वैल्यू पे आप कैरी करते जाएंगे। ओके, अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही क्यों फॉलो हो रही होती है मेजरमेंट बेसिस के लिए? वो इसलिए फॉलो हो रही होती है कि रेलिवेंट है और फेथफुल है। फेथफुल में हमने कहा था ना, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जो है वो Yes. टाइमली होना चाहिए, तो फेथफुल है क्योंकि आपको पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जब आपने खरीदा होगा उसकी इनवाइसेस भी आपके पास है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग अप्रूवल भी है, सब कुछ है, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज, वो कहता है फेयर भी होती है, रेलिवेंट भी होती है और फेथफुल भी होती है, इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट ज्यादातर यूज होती है। लेकिन समटाइम क्या होता है, देखें, समटाइम हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो फेथफुल तो होती है लेकिन रेलिवेंट नहीं रहती। मैं अगर एग्जांपल Yes. दूं आपको, पाकिस्तान की एग्जांपल दूं, तो 2017 में एक गाड़ी का ब्रांड है वैगनार, सुजुकी वैगनार, वो थी 11 लाख की। ठीक है, 2019 में वही कार चली गई, नई कार 24 लाख की। 2021 में सही। वही कार चली गई 36 लाख की। ठीक है, हम्म, अब अगर एक कंपनी है जो ड्राइविंग स्कूल की कंपनी है, उसके पास 100 वैगनार है, उसने 2017 में 11-11 लाख की 100 वैगनार खरीदी, तो वो 11 लाख 11 1.1 मिलियन को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट इन करोड़। अब वो उसने yes. डेप्रिसिएशन, उसको 5 साल में उसने कहा जी मैं इसको डेप्रिसिएट करूंगा, हर साल उसने डेप्रिसिएशन ली। लेट्स सपोज 2 साल बाद हम 2019 में आ गए, तो आफ्टर 2 इयर्स उसकी जो कैरिंग वैल्यू है गाड़ी की 2019 में, वो उसके पास लेट्स सपोज 7 लाख की है, 0.7 मिलियन की उसके पास आ रही है पर कार, और उसके पास 100 कार्स है। लेकिन मार्केट में वही कार जो है वो 20 लाख की है उसी Okay. लेवल पे। अब वो फेथफुल तो है लेकिन रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपने तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रेलिवेंट। तो वो कहता है फिर रेलिवेंट होने के लिए आप दूसरी बेस यूज कर लो, वो क्या है? वो है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या है? कहता है द कैश दैट वुड बी पेड टू रिप्लेस द एसेट at current value reflecting the asset's age and condition. Replacement cost is the cost to entity of replacing the asset. However, in non-current asset situation, you will need to determine the asset's net replacement cost. Net replacement cost is a replacement cost of asset less appropriate amount of depreciation. तो कहता है कि जो आपके पास 2 साल चला हुआ एसेट है, मार्केट में वो 2 साल चला हुआ एसेट कितने तक का मिलेगा, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो आप बेटर है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज कर ले, करंट कॉस्ट यूज कर ले। अच्छा, यहाँ पे मैं सॉरी, मेंशन, यहाँ पे मैं क्या, मैं जी जी मैं प्लीज, क्वेश्चन। गो जी। हेड गो हेड गो हेड। जनरली जनरली कंपनीज के अंदर जिस तरह हम लोगों की जो प्रैक्टिस है, उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट ही हम ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली, इन केस अगर आपने अपने असेट्स को, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीनरी एंड प्लांट एंड ऑल यस पीपी, यस, सो उसके लिए इन जनरल कोई भी ये करंट कॉस्ट कंसीडर नहीं करता। इन उसके लिए एक वो जो रिवैल्यूएशन प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है, वो एक बिल्कुल ठीक, एक लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज यू हैव बिल टू हायर समवन, यू हैव टू प्रोसेस द करंट कॉस्ट मार्केट प्राइस, एग्जैक्टली the engineer एग्जैक्टली, will certify, then you have to auditor will certify, then only you can change the revaluation in the books. एग्जैक्टली। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस कोई भी करंट कॉस्ट कंसीडर नहीं कर सकता। मेरे क्वेश्चन है, क्या प्रोविजन है टू do this, I mean, own, or we have to go through the process of revaluation नो, देयर इज अ in प्रोविजन। historical और current cost में जो आप अगर आप बात करें? जी जी, वसीम साहब, देयर इज अ प्रोविजन, बट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम मैं अब आपको बताता हूं, ये प्रोविजन जो है वो सुटेबल होती है उन कंट्रीज के लिए जहां पे इन्फ्लेशन बहुत चलती है। ओके, जो फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन। हाँ, जो इन्फ्लेशन हिट कंट्रीज हैं जहां पे फ्लक्चुएशन बहुत है,
No, yes. अब मैं यही Mhm. बात करने लगा था, आपके क्वेश्चन पूछने से पहले वही एक्सप्लेन करने लगा था। अगर हम देखें यूके, यूएस में, यूएई में, इन कंट्रीज में इन्फ्लेशन है लेकिन फ्लक्चुएशन नहीं है। ज्यादा नहीं, yes. True, ठीक है, true. ठीक है, फ्लक्चुएशन Yes. ज्यादा नहीं है, तो दीज आर सुटेबल। वो फिर क्या होता है, जहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो वहां पे उसका जो जर्नल अकाउंटिंग इन्वायरमेंट है ना, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वहां का, फिर वहां पे जो प्रैक्टिस चल रही होती है उसी को फॉलो किया जाता है। सही, जिस अब तरह अगर यहाँ पे, yes. हाँ, अब अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान की बात करें, लेट्स सपोज मैं जब यूएई में रहा, जी, देखिए मैं यूएई में था 2021 से लेके 2017 में, अब भी चलता रहता है, लेकिन मेनली जो मेजर था मेरा टाइम वहां पे वो था 2011 से लेके 2017 में। अब मैं एसीसीए का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। सो मैं आई यूज टू पे सही, लॉट्स ऑफ पेमेंट्स, मतलब मैं खुद नहीं था पे करता, मैं अप्रूव करता था। तो जी, जी, एसीसीए को हम लोग पे करते थे यूएई से। ठीक है, अब मुझे अभी भी ओके, याद है कि 2012 में जो हम लोगों ने पेमेंट की थी, तो एक्सचेंज रेट था 3.66 का। ठीक है, सही, और 2017 में जब मैं जो लास्ट पेमेंट हुई थी एसीसीए को, वो कोई 2.70 पे हुई थी, सॉरी 3.70 पे। जी, 3.66 एंड 3.7, देखिए 6 सालों में करेंसी में कितना कोई फ्लक्चुएशन आई, कुछ भी नहीं, ओनली 4 फिल्स। यस, यस, और उसके अगेंस्ट अगर हम लोग अपने कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान इंडिया की बात करें, तो सी द फ्लक्चुएशंस। यस, 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 ओके, ट्रू, तो ट्रू, फिर व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ जनरल इन्वायरमेंट जहां पे इतनी फ्लक्चुएशंस ना हो, तो वहां पे फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही, उसी प्रोसेस को किया जाता है फॉलो। ठीक है, गॉट, यस, ट्रू, जहां पे फिर हो तो यस यू कैन। देखिए प्रोविजन, दिस इज द फ्रेमवर्क टेलिंग यू कि जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोविजन रेलिवेंट नहीं रहेगी, तो फिर आप क्या करें, आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉस्ट पे शिफ्ट कर जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट दे सही, आर टेलिंग यू। अच्छा, अच्छा, एक नहीं, और मजे की बात बताऊं आपको। जो रिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस है ना, जी, वो भी समवट जाके जो है ना, वो करंट कॉस्ट पे ही चला जाता है। अब आप मुझे हाँ, वेरीफाई, आप खुद ही वेरीफाई करेंगे जब आप रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में जाते हैं, तो जब आप जी, रिवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं तो वो तो एक्चुअली मार्केट को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना। यस, द करंट मार्केट प्राइस, वी कैन से, एग्जैक्टली exactly, तो दैट इज देयर करंट यस, कॉस्ट वाला मेथड आप फॉलो कर रहे हैं। यस, यस, लेकिन ट्रू, लेकिन ऑनवर्ड जो है वो हिस्टोरिकल बन जाता है, फिर आप उसे हिस्टोरिकल कह देते हैं। यस, गॉट सही, इट, तो वो एक्चुअली रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज बीइंग फॉलोड इन थ्रू रिवैल्यूएशन। यस, गॉट इट, ओके जी। द थर्ड वन पे हम जाते हैं। वो कहता है द थर्ड वन इज फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू? द अमाउंट द आइटम वुड बी रियलाइज्ड इन एन ऑर्डरली आर्म लेंथ डिस्पोजल। अच्छा, ये वाली फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू वो कहता है, ये आईएफआरएस 13 का है, पैराग्राफ नंबर 9। उसमें वो कहता है व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज कि आप मार्केट सिचुएशन में आर्म लेंथ बेसिस पे कोई चीज जो खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं, दैट इज फेयर वैल्यू। आर्म लेंथ प्राइस मतलब क्या है? आप मार्केट में गए, आपने मोबाइल खरीदना है, आपने एक से पूछा कितने का है, दूसरे से पूछा कितने का है। तो देखें, एक अगर वही मॉडल आपको बता रहा है 1000 दिरहम का है, तो दूसरा वो 950 का बता देगा या 1050 का बता देगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि वो जो 1000 वाला एक मॉडल है वो आपको एक दुकान वाला 400 का बता रहा है, दूसरी दुकान वाला 2000 का बता रहा है। राइट? हाँ, तो अच्छा, सही, और आर्म लेंथ क्या है कि आपने जेब में से पैसे निकाले, आपने उसको दिए, ये आर्म लेंथ है ना, उसने वो पैसे पकड़े और आपको चीज दे दी, नाउ दैट इज आर्म लेंथ। तो कहते हैं फेयर यस, वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू इज द अमाउंट द आइटम वुड बी रियलाइज्ड इन एन ऑर्डिनरी आर्म वेल लेंथ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आल्सो नोन एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज एस्टिमेटेड सेल्स प्रोसीड लेस एनी कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेलिंग एसेट्स। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए ऊपर वाला जो था ना करंट कॉस्ट, वो तो था स्पेसिफिकली नॉन करंट एसेट्स के हवाले से। लेकिन जब करंट एसेट्स में हम लोग बात करते हैं, और करंट एसेट्स में भी हम लोग स्पेसिफिकली इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो समटाइम्स क्या होता जी, है, इन्वेंट्री में कुछ समटाइम्स ऐसी इन्वेंट्री होती है जो कि आपने खरीदी किसी और कॉस्ट पे होती है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस डिटोरिएट हो गई, खराब हो गई, कोई इशू आ गया, उसकी वजह से वो कॉस्ट जब बिकेगी तो वो कॉस्ट से भी नीचे बिकेगी। जी, बिल्कुल सही, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं दो तीन एग्जांपल्स है इसकी, एक एग्जांपल अगेन मोबाइल फोन्स की देता हूं या लैपटॉप्स की देता हूं। एक कंपनी है जो लैपटॉप्स का काम करती है, उसने 100 लैपटॉप खरीदे या 100 मोबाइल खरीदे, लेट्स सपोज आईफोन, मैं कहता हूं आईफोन 14 खरीदा उसने कि वो बेचेगा। और आईफोन 14 लेट्स सपोज उसने, उसकी कॉस्ट थी, मैं सपोज कर रहा हूँ, कॉस्ट थी उसकी 2000 दिरहम पर आईफोन उसने खरीदा।
अच्छा, आईफोन 14 उसने खरीद लिया, उसे नहीं था पता आईफोन 15 भी आ रहा है। अब उसकी कॉस्ट थी 2000 की, उसके पास अभी 50 आईफोन पड़े थे कि आईफोन 15 लॉन्च हो गया। अब जब आईफोन 15 लॉन्च हो गया तो डेफिनेटली आईफोन 14 की सेलिंग प्राइस वो उस प्राइस पे नहीं बिकेगा जितना वो पहले बिक सकता था। Yes, ठीक there है, is a तो drop. अब होगा क्या, अब उसकी प्राइस और नीचे चली जाएगी। अब देखिए, उसी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिपोर्ट करना विल नॉट बी अ रेलिवेंट थिंग। सही. ठीक है, तो क्योंकि उसको अगर कॉस्ट पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट पे रिपोर्ट करने का मतलब है कि वो 2000 की है और 2000 आपके एसेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जब वो मार्केट में आप बेचेंगे तो वो तो 2000 की बिक ही नहीं सकती, क्योंकि बेचने के भी तो एक्सपेंसेस हैं। तो फिर वो कहता है That is फिर, not volume. Yes. यस, तो फिर वो कहता है आप फेयर वैल्यू पे उसे ले आए। अगर नुकसान वो फिर कैसे लाएंगे वो हम लोग इंशाल्लाह फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन देर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ stating measuring the things on the fair value depending on the nature of items. Got it? Yes. अच्छा, Got. ये तीन तीन तो हो गई मेन, तो कॉस्ट है। उसके बाद उसने कहा कॉस्ट रेलिवेंट नहीं रही तो कॉस्ट करंट कॉस्ट पे ले आओ, वो रेलिवेंट नहीं तो फेयर वैल्यू पे ले आओ। अब लास्ट पे आ गया वैल्यू इन यूज, ये सबसे लास्ट रिसोर्स है। अच्छा, ये वो क्या कहता है, वो कहता है जब कुछ भी नहीं है ना तो आप क्या करें, आप उसको डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज पे ले आए। मैं इसकी एग्जांपल, इन पाकिस्तान लाइक इन 2018 19 या in 19 there was a legislation change that there will be no more, वो जो होते हैं ना शॉपर, वो पॉलिथीन के शॉपर, that will not be used in the markets, right? अच्छा, अब देखिए कहाँ ये कैसे इंफॉर्मेशन यूज होती है। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन यूज का भी बताता हूं। द डे इट वाज announced as a like legal announcement was there that polythene shoppers are banned, the next day in the market वो जो दूसरे थे जो कि यूज होंगे, वो बैग्स थे वो अवेलेबल थे, जो क्लॉथ बैग्स होंगे वो अवेलेबल थे। इसका मतलब नहीं. ये है, इसका मतलब ये है कि किसी को जो कि अंदर से, जो भी अंदर का बंदा था, जो भी जिसको पता था कि ये लॉ चेंज हो रहा है, उसने पहले से वो मशीनें मंगवा के उस पे प्रोडक्शन करके, क्योंकि रातों रात तो नहीं हो सकता, उसने मार्केट के लिए सही. सामान रेडी रखा हुआ था, राइट? उसने उतार दिया। Got it. अच्छा, अब हुआ क्या, Yes. ये पूरे का पूरा मुद्दा ये नहीं है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मेरे कुछ दोस्तों ने, जब ये हुआ 6 महीने गुजर गए, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार, यार ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम भी यूं करते हैं, चाइना से प्लांट आता है कोई 20 लाख का, हम चाइना से प्लांट मंगवाते हैं और वो प्लांट मंगवा के हम भी प्रोड्यूस करते हैं। आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें सही. मैंने कहा खुदा के बंदो, आप जिस टाइम पे मार्केट को रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, अभी तो मार्केट में जरूरत ही नहीं रहेगी और ये आने वाले कुछ दिनों में वापस मार्केट वही शॉपरों पे चली जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, तू ऐवी छोड़ता है, ये है वो है, तू नेगेटिव सोच रहा है। दे इम्पोर्टेड सरजी प्लांट फ्रॉम द चाइना, 2 1.5 महीना लगा वो प्लांट इंपोर्ट करने पे, सेट होने पे सब कुछ। बाय द टाइम दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दोज जो जो बैग्स थे, वो मार्केट में Bags. वापस पॉलिथीन बैग शुरू हो गए, राइट? Oof. No. अब देखिए अब हुआ क्या, वो जो 20 लाख का प्लांट था, अब अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसको करे, रिपोर्ट करें, तो वो ना फेथफुल है। लेट्स सपोज अगर ये एंटिटी के केस में बात होती तो ना वो फेथफुल होता ना वो रेलिवेंट होता। अब सही जी. करंट कॉस्ट पे बात करें तो मार्केट में वो रिप्लेस हो ही नहीं सकता, बिकॉज सही. देर इज नो मार्केट फॉर दैट। अच्छा, फेयर वैल्यू की Yes. बात करें तो अगेन वो मार्केट में उसकी आर्म लेंथ प्राइस होगी नहीं, जबकि वो मार्केट, क्योंकि वापस उसकी मार्केट ही नहीं है, वो चलना ही Market. नहीं है। Market. अब फिर जी. किस पे मैयर करे, तो वो कहता है लास्ट रिजॉर्ट जो है ना वो होता है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या होता है, आप फाइंड आउट करें कि इस प्लांट को यूज करके हमें बेनिफिट कितना आएगा और उसको प्रेजेंट कर लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ये फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आएंगी उसको डिस्काउंट करके, उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल के उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के आज के दिन क्या होगी। अगर फ्यूचर में उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी तो उसे जब प्रेजेंट करेंगे तो जारी बात है वो जीरो आएगा, तो यू रिपोर्ट ऑन जीरो, Okay. राइट? दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट कि जब भी मेजरमेंट का ना फेयर वैल्यू सही हो, ना कॉस्ट करंट कॉस्ट ठीक हो, ना हिस्टोरिकल कॉस्ट ठीक हो, तो फिर वैल्यू इन यूज यूज की जा सकती है। बाय द वे लेट मी टेल यू, ये तो मैंने आपको एक एक्सट्रीम केस बताया ना, ये बेनिफिट के लिए भी नहीं. यूज किया जा सकता है।
ये मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, ये बेनिफिट के लिए भी यूज किया जा सकता है। आप अपने एसेट को वैल्यू इन यूज पे, के हमारी अगले साल, क्योंकि कुछ कुछ एसेट्स, कुछ प्लांट एंड मशीनरी ऐसी होती हैं कि जो मार्केट में उनकी फेयर वैल्यू आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिक होती है। Okay. दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे डोंट Okay. हैव द फेयर वैल्यू, दे डोंट हैव द करंट कॉस्ट। Okay. I have one question. यस यस, गो Okay. अहेड। This very, I mean, ये जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट हो रहा है। जैसे अभी currently we are using one method which is lease, the new ओके, law, I mean the new ruled by IFRS, यस, जिसके ऊपर लीज को अभी आपने right of use, it's a kind of assets but intangible I mean right of use, गॉट इट, गॉट इट, the ROU, जिस जैसे यस, हमारी कंपनी के लिए हमारी लैंड है वो लीज के ऊपर है, गॉट इट। तो उसकी यही वैल्यू हमने निकाली हुई है। फ्यूचर वो प्रेजेंट वैल्यू इन फ्यूचर कैश फ्लो जिसकी बात सी, कर रहे हैं आप, दिस इज उसकी व्हाट देयर इज देयर। स्केड्यूल बनाई हुई है 50 इयर्स, नेक्स्ट 50 इयर्स, एंड वी आर बुकिंग एवरी ईयर इन दैट ROU, उसकी एग्जैक्टली, डेप्रिसिएशन। so that is value in use, you are using it at a value in use. यस, Got it? You are using that measurement method which is value in use. यस, Because, see, सही, because that specific asset cannot be measured at historical cost, because it doesn't यस, have, it, तो it doesn't have any या historical cost. It या cannot be on current cost because it is specifically for your organization. यस, Neither it can be on fair value. So what is that? That is in value in use. And वैल्यू, that यस, and that is given in the framework, paragraph number 6.17 to 6.20. That can be verified as well. Got it? यस, So there is an illustration. ये आप लोगों ने खुद से करनी है, ये इन्हीं चारों के ऊपर है। ठीक है, इसको देख लेना, बहुत सिंपल सी है, उसका सोल्यूशन भी है। ओके, थोड़ा सा ओके, आपको और ओके, हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे टाइम जाया करूंगा तो हमारा फिर नहीं नहीं सही, ओके, वैसे ही हमारे सही, कम टाइम सही, रह गया। ओके, अच्छा, अगर यस, ये चारों ना हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट ना हो, तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेटिव वे भी देता है फ्रेमवर्क। देखिए, फ्रेमवर्क अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग पे कहा था ना, फ्रेमवर्क इज अ कॉमन सेंस फॉर रिपोर्टिंग the financial results in a relevant and faithful way. That's it. और ऑडिटर भी यही चाहता है। ऑडिटर कहता है ओके, आपने फेथफुली रिप्रेजेंट किए, रेलिवेंट है, अगर है तो कैसे है ये प्रूव करो। इफ यू हैव प्रूवन दैट तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा ऑडिट का। इफ यू डोंट हैव प्रूफ ट्रू, तो फिर ऑब्जेक्शन आएगा, सिंपल सी बात है। कहता है अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के अलावा और क्या ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वो कहता है as historical cost accounting has been criticized for providing information that is out of the date, यानी relevant नहीं है, and potentially यस, understate asset value. Current value accounting has arisen as an alternate. ये जो करंट ऊपर भी थोड़ी सी पड़ी और उसकी जी, जी, एलेबोरेट कर रहा हूं। कहता है दिस लार्जली टेक्स टू फॉर्म्स, एक कांस्टेंट परचेजिंग पावर की बेसिस पे, एक करंट कॉस्ट अकाउंटिंग की पावर पे। ये वही फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहता है कैसे। कहता है की फीचर्स इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड टू शो ऑल द फिगर्स इन टर्म्स ऑफ मनी विद द सेम परचेजिंग पावर। तो करना क्या है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितनी भी फिगर्स है ना, उनको परचेजिंग पावर की बेसिस पे रिफ्लेक्ट कर देना है। परचेजिंग पावर की बेसिस पे रिफ्लेक्ट करने का क्या फायदा होगा, लेट्स सपोज आज से 10 साल पहले परचेजिंग पावर क्या थी आपकी करेंसी की और आज क्या है, तो बेसिक इसमें होगा क्या, इसमें एक्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी। यस, सवाल सवाल ये है, कोई भी प्लांट जो है, कोई भी मशीनरी जो है, कोई भी एसेट जो है, वो ओवर द इयर्स महंगा क्यों होता है? वो एक्चुअली महंगा नहीं होता, आपकी जो करेंसी है विच यू आर यूजिंग, वो उसकी परचेजिंग पावर लूज हो जाती है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप एक कांस्टेंट मनी की परचेजिंग पावर रखो, कि तब परचेजिंग पावर कितनी थी और अब परचेजिंग पावर कितनी है। तो अगर आज के हिसाब से तब होता या तब के हिसाब से आज होता, तो उसको इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट कर दे, यू कैन रिफ्लेक्ट दैट, और इस पे ऑडिटर ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता। नहीं, ठीक हो गया? अच्छा, और क्या कर, लेकिन ये जी, डिफिकल्ट है, ये कॉमन नहीं है, ये इंडस्ट्री, अब ये डिपेंड करता है। देखें अगेन, फ्रेमवर्क क्या कहता है, फ्रेमवर्क कहता है ये तो फ्रेमवर्क है, ये प्रिंसिपल है, लेकिन आपने देखना है कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन क्या अलाउ करती है। दिस इज व्हाट इज रिटन इन द फ्रेमवर्क एज वेल। ठीक है, वो कहता है यस, कि आपने सबसे पहले, फ्रेमवर्क भी ये कहता है कि आपने सबसे पहले अपनी ज्यूरिसडिक्शन को देखना है कि आप जिस ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं वो कौन से लॉज को अलाउ करती है, उसके बाद इसको अडॉप्ट करना है। तो जैसे पाकिस्तान में, सही, पाकिस्तान के या यूएई के लॉज में लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट लॉ में, कि आपने आईएएसबी के स्टैंडर्ड्स को यूज करना है, जबकि यूएस में लिखा हुआ है कि आपने जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करना है। तो पहले ज्यूरिसडिक्शन को फॉलो किया जाएगा, फिर ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या
FRC अप्लाई होंगे। ठीक है जी। definitely. अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी करेंगे क्या, जनरल प्राइस इंडेक्स इज यूज फॉर दिस, अप्लाई अ जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिगर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडजस्टेड बाय CPP फैक्टर, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स है, आप उसको कर देंगे। अच्छा, इन कन्वर्टिंग द फिगर्स इन बेसिक हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स into those in CPP statement, a distinction is drawn। अच्छा, वो फिर स्टेटमेंट ही CPP कहलाएंगी तो डिस्टिंक्शन ड्रॉ होगी मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम में। वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, मॉनेटरी आइटम कौन सी होंगी, नॉन मॉनेटरी कौन सी होंगी। वो कहता है मॉनेटरी आइटम आर दोज हुज अमाउंट्स आर फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स of units of currency regardless of changes in general price levels। Example of monetary items are cash, receivables, payables and loan capital। यानी ये फिक्स है ना, इसमें इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होके फर्क ही नहीं आएगा, ये तो उतने के उतने ही रहेंगे। अच्छा, नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स इंक्लूड सच एज एसेट एज इन्वेंट्री एंड नॉन करंट एसेट्स, जो कि फिक्स नहीं है, जो कि उनकी परचेजिंग पावर चेंज होती रहेगी। ये सारा आ गया। इसके बाद हम थोड़ा सा लास्ट कुछ मिनट्स में हम देख लेते हैं ये फ्रेमवर्क नेसेसरी है क्यों। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉर नंबर ऑफ रीजंस। पहला क्या है? टू इंश्योर दैट नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेट विद लीस्ट अ बेसिक मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो कह रहा है ये जो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करेगा, इससे एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट और फेथफुल। To ensure that needs of users of financial statements are met, to ensure that all the information provided in relevant economic arena in both comparable and consistent, वही बातें रिपीट हो रही हैं। To increase the users confidence, to regulate the behavior of companies and directors। अच्छा, सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले IFRS, अगर इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करें, सबसे पहले IFRS फाउंडेशन है, उसके नीचे IASB है, उसके नीचे IFRC इंटरप्रिटेशन कमेटी है IC, और IASB के नीचे ही IFRS की एडवाइजरी कमेटी है। एडवाइजरी कमेटी जो है ये क्या करती है? ये पूरी दुनिया से मुश्किलात, जो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स है, उनको इकट्ठा करती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल वो बड़े ज्यादा वो आ रही है, क्या उसे कहते हैं, ये यार डिजिटल करेंसी, वो कौन सी है, मेरा नाम जेन से निकल गया। हाँ, बिटकॉइंस। बिटकॉइंस जो है, ठीक है, बिटकॉइंस है जी भाई, उसकी उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये आजकल ये कैसे IFRS करनी इस पे बात कर रही है। फिर NFTs थे, नॉन फंजेबल टोकन्स, इनकी अकाउंटिंग कैसे कर, ये बेसिकली ये है कि तस्वीर है एक, उसको बना देते हैं, उसको ओन करते हैं, फिर उसकी प्राइसिंग होती है थ्रू बिटकॉइन और वो सारा। भाई अगर कोई कंपनी कर रही है उसको, तो उसकी क्या होगी? तो ये सारी नए अरीना में ये इकट्ठे करते हैं और एडवाइस करते हैं IASB को कि अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड अगर ऑलरेडी अवेलेबल था तो उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, या वो सुपरसीड होके नया आने की जरूरत है। जैसे कि IAS 17 जो कि लीजेस के ऊपर था, उस वो अब जी सुपरसीड हो गया हुआ है IFRS 16 से, जो कि IFRS 16 अप्लाई हो रहा है। 16 yes, IAS जी 17 जो है सुपरसीड हो गया। अभी भी कुछ कंट्रीज में उसकी कुछ प्रोविजंस हैं अप्लाई हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल तो इसी तरह जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर देयर वाज IAS 32, IAS 39, IFRS 5 और IFRS 9 है, ये यूज हो रहे हैं। तो IAS 32 जो है वो सुपरसीड हो गया। तो इस तरह ये एडवाइजरी करती है। इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या करती है? जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टैंडर्ड्स इशू करता है, उसको इंटरप्रेट करती है। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड है, हम तो बहुत समराइज्ड पढ़ेंगे ना, उसके ऊपर जो उसकी इंटरप्रिटेशन है कि ये क्या, इसका मकसद क्या है, वो 700 पेजेस की होती है। ठीक है, तो वो उसका काम IFRS IC का काम हुआ है। आपको कभी भी किसी IS को या IFRS को अप्लाई करने में इशू हो रहा हो ना, तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं, तो वो आपको हर एक चीज एक एक उसमें मिल जाएगी। ये नीचे उसी की मैंने जो है वो थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। यू कैन डू इट ऑन योर ओन एज वेल कि क्या करना है। डेवलपमेंट ऑफ IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोसीजर क्या होता है, वो बनते कैसे हैं। द प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एज फॉलोज। बोर्ड आइडेंटिफाइज अ सब्जेक्ट एंड अपॉइंट्स एन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज ऑन द इशू। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बोर्ड कौन सा? IASB। The board may issue a discussion paper to encourage comment. The board publishes an exposure draft, being a draft version of intended standard. Following the consideration of comments received on draft, the board publishes the final text of IFRS accounting standards।
publication of IFRS accounting standards exposure draft and IFRC interpretation जो है requires the vote of at least 8 of the 15 board members, तो board members में से उनकी चाहिए होती है। अच्छा ये नीचे जो है मैंने, हाँ ये भी बता दूं, बेसिकली हुआ क्या था 2001 से ऑनवर्ड ना, 2001 से ऑनवर्ड देयर वाज अ चेंज इन दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर था ना, इस स्ट्रक्चर में चेंज आया था 2001 के बाद, और जो मेजर आया था वो 2012 के बाद आया था। तो उसके बाद फिर वही जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले कहते थे, उन्हें फिर वो क्या कहना शुरू हो गए, उन्हें वो IFRS कहना शुरू हो गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उन्होंने कहा जी नहीं, आपसे IS नहीं कहना, इसको IFRS कहना है। ये मैंने ना नीचे लिस्ट दी है। अभी तक करंटली IAS जो है वो 41 इशू हुए थे, 41 IAS इशू हुए थे, और उसके बाद जितने आए वो IFRS आए। IFRS अभी तक 18 तक आ चुके हैं, दो जो है 17 और 18 अभी उस पर और भी वर्क हो रहा है। ये लिस्ट में मैंने वो सारे IS2 से IS 1 से लेके IS 41 तक दिए हैं, जिसमें मैंने साथ में आगे बताया भी है कि वो सुपरसीड हो गया है या वो एप्लीकेबल है ही नहीं है, ठीक है, वो आउट हो गया, आउटडेटेड हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये 41 तक दिए, इनके सिर्फ आपने नाम देखने हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक समराइज्ड आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद IFRS की भी लिस्ट मैंने बना के यहाँ पे दी है, जो कि कब आया था, इफेक्टिव डेट कब थी। तो उस IFRS जो है वो सारे के सारे 18 तक जो है, बल्कि 19वें पे अभी काम हो रहा है। ये सारे के सारे 18 और 19 जो है वो 2027 में इंशाल्लाह आ जाएंगे, उन पे काम हो रहा है। तो ये सारे के सारे वो है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आज के दिन के लिए स्टॉप कर रहा हूँ।